Good morning, sir. Morning, everyone. Please mute yourself. We're going to study. We're going to start our lecture. The class will start now. So please mute yourself. The topic for today's lecture is development of caste system in India. We will discuss the development of caste both in ancient India as well as in medieval India. Am I audible? Only one. Yes, sir. Okay, thank you. So I think only one section, in only one section I have delivered this lecture. I think it is in D or F. Caste सर system. डी में सर आपने परसों ही दिया था सर. Exactly. So this is for D को भी रिवाइज हो जाएगा और दूसरे जो है it is fresh lecture for them also. ठीक है. And A, B and C. A, B and C. आपने ये टॉपिक पढ़ा है कास्ट सिस्टम? A, B और C. जी सर पढ़ा है. सेक्शन ए गनीम सिंह सोहानी. अच्छा, सेक्शन ए से. See, we will discuss this again with you after the completion of this lecture. I will complete this lecture and after that we will discuss the caste system with you also. So caste system की बात जब करते हैं हम, it includes two things. One is varna, another is jati. Two things are associated with the concept of caste in India. One is varna system, another is jati system. मुझे कोई बता सकता है वर्ण सिस्टम क्या है? What are the features or characteristics of varna system or jati system? Any one of you, except the D class? No, not D class. What are the features of varna system or jati system? Any one of you? So somebody has written that caste is divided into four. No, this is not so. Caste is not divided into four. As I told you that caste includes two things. One is varna system. Varna is based on fourfold division of the society. While the jatis are numerous, it could be 3,000. During modern period, when the censuses were held, that time around 3,000 jatis were in India. Those jatis that were considered as caste. But as I told you, now the sociologists, historians, they consider the caste system is based on varna system and jati system. I will tell you what this caste jati system and this varna system emerged in India, how they emerged in India and how they developed in India. So you would be, you can recall what was the position of this, you can say the society. What kind of society was there in Rig Vedic period? What kind of society was there? Was it caste based? Was it varna based, or it was something else? Any one of you? सर लास्ट क्लास में काफी बच्चे प्रेजेंट नहीं थे, तो अगर आप ब्रीफ कर देते थोड़ा सा तो that is what I am repeating. I will repeat each and everything, but meanwhile I would like to listen it from you also, because different topics we have already discussed this caste system briefly by making passing references to the caste system. When you studied about the Rig Vedic society, you have already come to know what type of society was there. So I'm asking you, what kind of society was there in Rig Vedic period? What kind of society was there? Was it caste based or was it egalitarian? Exactly. So Bhavi is writing that in Rig Vedic period, varna was not present. The divisions was based on work. So you would be remembering, you can recall that thing which I have told you in the class, that in the Rig Veda there is a verse, एक श्लोक है जिसमें क्या लिखा है? I am a priest. My father is a physician and my mother is grinding corn. So what does that signify? What does that imply? कोई कह सकता है? अगर एक आदमी ऋग्वेदिक पीरियड में कहता है कि मैं priest हूं, that I am a Brahman. My father is a physician. जो मेरी मदर है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में है. So what does that signify? That it signifies that everyone is equal. Exactly. That means society was not divided into varna system. It was not divided along caste lines. Society was based on, it was, the division was there, but it was occupational division. From the same family, people choose to different
occupations in the same family. In the same family, people choose different occupation. But this was not the case with the later Vedic period or in the subsequent period. What you find in the subsequent period or in the later Vedic period, now society came to be divided into varnas, into different classes. One was varnas were 4 in number. One was Brahman. Second was Kshatriya. Third, Vaishya and Shudra. And with the present, yes, exactly. So this thing, first time. So what we see is that first time this fourfold and Shudra. Yes. So first time where we see that this society came to be divided along caste lines, it is in the Purusha Shokta hymn. First time in the 10th mandala, 10th chapter of the Rig Veda, what we find is that in the 10th mandala of the book is that first time it is stated that Brahman is born from the head of the god, premial man, and Kshatriya from his arms, and Vaishya from his thighs, and Shudra from his feet. So this was the hierarchy. Important system, important feature or important characteristic of the this Varna system is that if you will see that it means it is hierarchical in nature. एक तो इसमें hierarchy है, Brahmins are at the top and Shudras are at the bottom. This means it is hierarchical in nature. Another feature of this Varna system is that the Varna is based on birth. If you are a Brahman, your children will be Brahman. If you are a Kshatriya, your children will be Kshatriya. If you are a Shudra, your children will be Shudra. So you had no choice at all. You had no choice to change your profession or change your Varna. आप जब तक जिंदा है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही रहेंगे, शूद्र है तो शूद्र ही रहेंगे. ठीक है? Excuse me, sir. हाँ. तो सर ये थिंकिंग सर डेवलप कैसे हो गई? मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हुई होंगी या कुछ? See, everything takes time. It is not a sudden development. अगर आप देखेंगे, there is a period of 500 years from 1500 BC to 1000 BC. There is a period of 500 years. That means a lot. 500 सालों में बहुत कुछ हो सकता है. देखो, अब जो लिटरेट सोसाइटी होती है, जैसे ब्राह्मण प्रीस्ट क्लास क्या करते थे, अब जैसे मैंने बोला अर्ली वैदिक पीरियड में आप देखेंगे सोसाइटी वाज इगैलिटेरियन नेचर. आप अगर वुमेन, जो मैंने पढ़ाया था पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया, उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से इक्वलिटी थी, किस तरह से बहुत सारे राइट्स वुमेन वेर एंजॉयिंग इन ऋग वैदिक पीरियड आल्सो. लेकिन धीरे धीरे करके कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि जिस वजह से जो अपर क्लास था, ब्राह्मण जो थे या प्रीस्ट क्लास था, जो लेटर ऑन ब्राह्मण्स के नाम से जाने गए, उन्होंने ही सोसाइटी को इस तरह से मतलब समझा या सोसाइटी को एक रिलीजियस कलर दे दिया. क्योंकि उस जमाने में ये होता था, रिलीजन वाज वेरी मच डोमिनेंट इन द सोसाइटी. पीपल वेर कंप्लीटली लेड बाय द रिलीजियस फिलॉसफी. आप अगर रिलीजियस कलर दे रहे हैं, ठीक, Varna system क्या है? It is not like Brahmanas कह रहे हैं and people are accepting it. It is not like Brahmanas कह रहे हैं Kshatriyas would accept it, that Brahmanas are superior to the Kshatriyas even, because Kshatriyas were the kings. It's not like that, because the Varna system got the religious backing. Varna system को किस तरह से बनाया गया? Because God has created this. God has created for the smooth functioning of the society. God has created the fourfold division in the society. And it was the dharma of each and every group, be it the Brahman, be it the Kshatriya, be it the Shudra, to follow their respective occupations. ये नहीं था कि आप ब्राह्मण हैं तो आप बोलेंगे क्या कोई मसला नहीं है ऐसा, लेकिन आपको you are bound by the religious teachings. जिस तरह से religious teachings आप हमारे दिमाग पे हावी होते हैं, उसी तरह से उस जमाने में जो philosophy of Varna system था, वो लोगों के दिलो दिमाग पे बहुत ही that was embedded into the psyche of the people. क्या? Varna system. किस तरह से किन्होंने? Brahmanas ने. So कहने की बात ये है, there is nothing like how this emerged, why this emerged suddenly. It was not a sudden development, but it took time. For 500 years, Aryans were living in India, and it is said that Shudras जो थे, Shudras जिनको कहा गया है, they are the earlier Aryans who had come before the Aryans, or they were those tribes that were outside the
Aryan society, and they were included into the society, Aryan society, and were given the status lower than the Brahmins or the Kshatriyas. So there are many theories about that, but this is not certain why and how this system emerges, how Varna system shifted to caste system. See, I will again make it clear that you're confused. Somebody has written that how Varna system shifted to caste system. Okay, Jati system sometimes is also known as caste system, but in Indian context, caste system includes both the things. One is this Varna system, and another is Jati system. Varna system is, you can say it is there. It cannot be changed. Only 4 Varnas are there, and it will remain forever. It was there from the very beginning, and it is there even now. But Jati system जो आप देखेंगे ना, right from the beginning, from 6th century onwards, अगर आप बात करेंगे, कुछ evidences हमें मिल रही है, जाति सिस्टम जो है उसमें क्या होता है, it is occupation based. आप शूद्र कैटेगरी में या वैश्य कैटेगरी में, somebody is ironsmith, somebody is cobbler, somebody is making the pottery etc., somebody is fisherman, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, जाति उसी बेसिस पे बन गई. There were separate quarters of people belonging to different professions, and those professions converted or transformed into jati. अब जाति क्या है? Occupation based caste system. ठीक है, समझ आ रहा है? अब वर्ण सिस्टम क्या है? Fourfold division of the society that is backed by the religion, and that is backed by the religion in a way that it is God who created the fourfold division, and it's the responsibility of each and every varna to follow their own, to follow their respective occupations or respective duties. क्योंकि धर्म जो है, आपने धर्म जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को, क्या पढ़े हम उसमें? जो धर्म था, एंशिएंट लॉ था, वो सिर्फ ह्यूमन कंडक्ट को सोसाइटी में, मतलब इट वाज ऑल एनकम्पासिंग. धर्म लॉ जो था, आपके पास जो है, जैसे आपने चोरी की, उसमें क्या सजा है, आपने अडल्ट्री की, उसमें क्या सजा है, ठीक है, डिफरेंट क्राइम्स की, उसके लिए क्या पनिशमेंट है, आपके रिलीजियस रिचुअल ऑफेंसेस किए तो उसके लिए आपको क्या पेनेंस करना है, ठीक है. आपको आपकी सोच जो है, आपकी सोच के लिए भी धर्म लॉ था कि आप बुरा सोचेंगे तो पाप मिलेगा, वो भी धर्म है. इसी तरह से आप ब्राह्मण है तो आपको ब्राह्मण का ही काम करना, शूद्र का नहीं करना, क्योंकि ये आपका धर्म है, आपकी ड्यूटी है. तो इसी तरह से हम अब टॉपिक पे फिर से वापस आ जाते हैं. सो इन अर्ली वैदिक पीरियड what we find is that in early Vedic period, what we find is that society was completely egalitarian in nature. There was no varna divided society. But towards the end of the early Vedic period, what we find is that society came to be divided into 4 varnas. As I told you, 4 varnas. At the top was Brahman, and at the lower end was this Shudra. But with the passage of time, there was inclusion, or there was development of another. Sometimes it is included as 5th varna, that is Chandalas or untouchables. ठीक है, चंडाला जो थे, they were one among the untouchables, क्योंकि बहुत सारे निषादास, बहुत सारे untouchables थे, जो चंडाला उनमें फेमस है. ठीक है, चंडाला जो कैटेगरी है, that is one among these untouchables. So with the passage of time, another development occurred, that is the development of this untouchability. जो concept of छुआ, जिस क्या कहते हैं उसे हिंदी में, छुआछूत, हाँ, concept of छुआछूत जो है. तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, अब 6th century तक situation was very good. Aryans were not that much, but with the passage of time there was population increase. You can assume that. तो ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण अगर वेदास पढ़ने बैठेंगे तो खाए पिएंगे क्या? अब सभी को रिचुअल्स ये सब, हर एक क्या करता था उस जमाने में. अब 6th century BC में आप देखेंगे, रिचुअल डोमिनेटेड सोसाइटी थी. That is why we see the emergence of Jainism and Buddhism, because people were very much exhausted by following these rituals of the Vedic religion जो था. उसमें क्या होता था, सभी ब्राह्मण सब वेदास पढ़ेंगे तो खाएंगे क्या? सभी क्षत्रियास अब किंग बनेंगे, वॉरियर्स बनेंगे, तो बाकी कहाँ जाएंगे? आप देखेंगे वैश्या जो है, उनके लिए तो सब फिर भी ठीक है, उनका तो यही था कि एग्रीकल्चर में, बिकॉज सोसाइटी वाज एग्रीकल्चर बेस्ड, शूद्रास को सर्व करना था अपर 3 क्लासेस का. अब ब्राह्मण्स क्या आते हैं, दे केम अप विद न्यू थ्योरी.
अब जो हम देख रहे हैं डेवलपमेंट इन कास्ट सिस्टम, दिस वर्ना सिस्टम, डेवलपमेंट इन वर्ना सिस्टम क्या है? With the passage of time, when Brahmins they found that they are not able to fulfill their needs by following their varna duties. So उन्होंने क्या किया? They came up with आपद धर्म. आपद धर्म किसको कहते हैं? जैसे आपातकालीन, आपात किसको कहते हैं? इमरजेंसी को कहते हैं ना संस्कृत हिंदी में. यस सर. आपात धर्म, APAD धर्म. सर आपातकालीन खिड़की. हाँ, जैसे आपातकालीन खिड़की होती है. So आपात धर्म, they came up with the concept of आपात धर्म. मेरा गला आज खराब है, थोड़ी तबीयत सही नहीं थी. So they came up with आपात धर्म. इसका क्या मतलब? हाँ, थैंक यू. So उसका क्या मतलब है आपात धर्म का? That if a particular person belong to a particular varna, if he is not able to fulfill what? If he is not able to fulfill this, if he is not able to fulfill his needs, his needs, if he is not able to fulfill his needs by following duties of his particular varna, he can take to the duties of another varna. That means if Brahmins are not able to fulfill their needs by following the duties of the Brahman varna, they can become the kings. And that is why you see that which dynasty replaced the Mauryas? I'm asking you. Which dynasty replaced? Guptas? No. These Mauryans. Anyone who killed the last Mauryan ruler, Brihadrata? Chakas. Pushyamitra Shunga. Exactly, Shunga. Exactly, Shunga. So Shungas were Brahmins. Not only Shungas, but also Satmanas were Brahmins. What does that signify? How is it possible if you are saying that in society, you have to follow the duties of your own dharma. So Brahman cannot become king because kingship and the warrior class, it belongs to whom? It belongs to this Kshatriya class. So how can a Brahman become a king? So it was by adopting, by bringing forth this theory, Apad Dharma, that in times of distress, in times of emergency, Brahmins, it was just made for themselves. अब शूद्र के लिए ये नहीं था कि शूद्र भी आपात धर्म में ब्राह्मण का वो चला सकता है, बिकॉज शूद्रास को क्या था, आपको मैंने बताया कि दैट शूद्रा जो था वो बहुत ही डिग्रेडेड क्लास था. अब 3 अपर क्लासेस के लिए क्या था? अपर 3 क्लासेस के लिए क्या था? वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के लिए they can listen to the Vedas, they can read the Vedas, they can wear that Vijaya, जो thread होता था, sacred thread, क्या बोलते उसे आप? जनेऊ. हाँ, जो वो, it was Brahman, these Shudras were not allowed to wear that thread, that sacred thread. ठीक है, क्यों? Because they did not deserve that as per the religious philosophy of Brahmanism that time. So आप देख रहे हैं upper three two classes were considered superior, that is Brahman and Kshatriya. लेकिन वैश्य क्लास जो था उनको भी थोड़ी बहुत रिलैक्सेशंस दे दी गई, थोड़ी बहुत ब्राइटनेस दे दी गई. अब आप देख रहे हैं अपात धर्म थ्योरी से क्या हो रहा है? अपात धर्म थ्योरी से क्या हो रहा है? That is Brahmins are now doing what? Brahmins are. Am I not visible or audible? Sir, can I ask a question, sir? Yes, Tushar Kumar. Am I visible and audible to you? Yes, sir. You are completely visible and audible. So, Bhavi, there must be some problem with you, with your internet. I'm visible, I think. Sir, as it is stated that Chandragupta Maurya was a Shudra. So, sir, how can you say that it was not only the Brahmin and the Kshatriya who ruled the ancient India, sir? Exactly. Nandas were also Shudras, but that is not certain. It is not certain yet whether they were the Shudras or not. Even the Mauryas, they are not considered Shudras, or these Nandas, because we have no evidence, complete evidence that they were the Shudras. ऐसे बोला जाता है, if Mauryas were Shudras, then why should Chanakya, who was a Brahman, should have helped Chandragupta Maurya to become the king? Because जो Chanakya थे, he was a complete Brahman. He was Brahman. आप देखेंगे उसकी जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य की,
तो उसमें वो ब्राह्मणिज्म को किस तरह से प्रमोट करता है. So it is completely impossible to think that this Kautilya or Chanakya, he would have helped a Shudra to become a king. ठीक है. So this is not certain yet whether they were the Shudras or not. Shudras जो है, Shudras even ruled. देखो, it depends. In Sindh, when the Muslims attacked us in 712, what happened there? Before that Brahman dynasty, the Shudras were ruling there. It's not like the Shudras were not ruling there, but that depends. Region decide करता था. आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में जो इंडो गैंजेटिक दौर था, वर्ना सिस्टम वाज डीप रूटेड इनटू दिस रीजन ओनली. अगर आप साउथ इंडिया की बात करेंगे, वर्ना सिस्टम वाज डीप रूटेड देयर, बट देयर वेर ओनली two, majorly there were only two varnas that were dominant, were dominant in South Indian society. That were the Brahmins and the Shudras. There was no this Vaishyas or these Kshatriya class. That was very rare. Only two classes, two varnas were in South India. South Indian society में varna system जो है ना, वो ज़्यादा अगर आप देखेंगे ना, बहुत ही dominant हुआ as compared to North India. North India में fourfold division था. Sir, Reddys were the Kshatriyas of the sir South and Karnataka region, sir. I'm telling you, but कौन थे? Sir, Reddys. Reddys किस dynasty के? Sir, I don't remember, but they are Kshatriyas, sir. I'm telling you, that was a rare thing. That was a rare thing. Society as a general, ठीक है. आप Reddy जो भी होंगे ना, it was, अगर आप देखेंगे ना, आप king बन रहे हैं ना, you need justification, you need legitimacy. ठीक है. जैसे छत्रपति शिवाजी को पढ़ा आपने? Yes, sir. So Brahmanas of Maharashtra were not ready. They were not ready to do those rituals. जो king बनने के लिए rituals होते हैं ना, they were not ready to play as a priest for those rituals. Raja Suya या Ashwamedha वो sacrifices होती थी, because they thought that this Shivaji did not belong to what Kshatriya Varna. फिर शिवाजी ने क्या किया? बनारस से पंडित, हाँ, बनारस से पंडित को गागा भट्ट को बुलाया. आपको पढ़ाया है ना मैंने? To change his varna. तो आप अगर देखेंगे ना, Reddys were Kshatriyas. It is not like कि it is also possible that they belong to some other varna, and they, when they assumed the power, when they assumed the role of the kings, they would have just established a line of kingship. So, as when we talk about the South Indian society, only two castes were dominant. When I say dominated, that does not mean the other two varnas were not there, but they were too rare. ठीक है. Generally, the majority population of the society were divided into two categories. One was this Brahmanas, other was Shudras or untouchables. ठीक है. आप देखेंगे South India में ही caste movements जो चली ना India में, it was in South India first. You will see on a large scale during modern period. आप ज्योतिबा फुले को देखेंगे महाराष्ट्र रीजन में, वेस्टर्न इंडिया में. आप उनको जो आज की डीएमके पार्टी है, जस्टिस पार्टी पहले थी, जो उनके वो थे, क्या नाम था, नायकर थे, उन्होंने साउथ इंडिया में ही कास्ट मूवमेंट चलाए. क्यों? बिकॉज द लोअर कास्ट they were humiliated by the upper classes, by the Brahmins there. तो आप देखेंगे जस्टिस नायकर वो मनुस्मृति को पब्लिकली जला देता है. क्यों जलाता है? आप मॉडर्न इंडिया में जब कास्ट मूवमेंट, साउथ इंडिया दलित मूवमेंट चली, तो वो मनुस्मृति को पब्लिकली जलाते हैं, क्योंकि they thought, they believe that is this मनुस्मृति that perpetuates the caste system in India. that perpetuates the caste system in India. So caste system का अब भी हमारी सोसाइटी पे असर है. So coming back to our topic, so I am telling you that with the passage of time, after the early Vedic period, when later Vedic period came, first time we see the emergence of fourfold division of the society, and slowly and gradually different things are associated with this caste system or the Varna system. First is the Apa Dharma theory, as I told you. That is why they are justifying, they are becoming the kings. आप जब तक आप religious legitimacy नहीं पाएंगे, ब्राह्मणस king नहीं बन सकते ना. आप अगर देखेंगे in the Gupta period, Brahmanas were the landlords. They were possessing large tracts of land. So in the original Varna theory, they were not allowed to, it was not their occupation, it was not their duty to look after the land. लेकिन आप ब्राह्मण पीरियड में आप देखेंगे, गुप्ता पीरियड में बहुत सारी जो लैंड थी
वो ब्राह्मण्स को एज लैंड ग्रांट्स मिली। वो किन से उनको डील करवाते थे? शूद्रास वगैरह से, मतलब लोअर क्लास वैश्या से। तो अब ये कहा जाता है दैट जो ब्राह्मण्स हैं वो हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसा ले आते थे जिस वजह से क्या होता था, जो उनके लिए प्रिविलेज लाए। आप फिर से देखिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट वर एसोसिएटेड विद दिस कास्ट सिस्टम। शूद्रा 2 कमरे के रूम में रहना चाहिए, ठीक है। पूरा जो अनटचेबल्स हैं, पुराने कपड़े पहने, सिटी से बाहर रहे, ऐसे ऐसे रूल्स थे अनटचेबल्स के लिए। जब आए तो अपने आने का संदेश दे दे। फहीम क्या कहते हैं, इंडिया में क्या हुआ था गुप्ता पीरियड में, क्या होता था चंडालास के बारे में? सर जब उनको मार्केट से निकलना होता था, they used to burn a stick so that people can identify them as chandals. Chandalas, exactly. Otherwise, they will pollute the higher caste person. Even as I told you that, even it is said in a certain text that अगर एक वैश्या की भी बेटी चंडाल को देखती थी, वो घर जाके आंखें धोती थी कि मेरी नजर इस पे पड़ी। शेडो जो होता था चंडाल का, वो भी क्या होता था, उसको टच करना भी वो था पोल्यूशन माना जाता था, ठीक है, छुआछूत में। तो ये सारी चीजें डेवलप हो रही थी धीरे धीरे। अब हम कहाँ आ रहे हैं? अब आप शूद्र को देखिए, शूद्र को कोई स्टेटस नहीं मिल रहा है। He is not allowed to listen to the Vedas. He is not allowed to worship in the temples. आप मनुस्मृति के रूल्स देखिए, कैसे कैसे रूल्स हैं। जैसे मैंने बताया, बताओ क्या बताया मैंने मनुस्मृति के बारे में? शूद्रास के लिए क्या क्या लिखा है मनुस्मृति के बारे में? कोई एनीवन? शूद्रास के लिए क्या क्या? हाँ Sir, Shudras were dark. Sir, Varna system means color according to Manusmriti, and it was according to Brahma who created the Varna system according to Manusmriti and Manu. And the Shudras were dark complexion, and they were made from the lower body parts like feet and all. Feet. I'm asking you, what is the religious status of the Shudras in Manusmriti? Can they read the Vedas? They were not allowed to Sir, read as per the Vedas. Manusmriti, Shudras सर उनको सर can't केवल read एक ही Vedas. गॉड की पूजा करने का अलाउड था सर। They can't chant the hymns and the various folks of the temples. They can't go to the temples, or if they hear any of the Vedas, then it was believed that then the molten iron has been poured Exactly. into their ears. That's what it said. So what Manusmriti says that if a Shudra, even by mistake, he heard this recitations of these Vedas, molten iron should be poured into the ears of the Shudra, along with the women. Women and Shudra, they were bracketed in the same category. जो women का status था, वही almost Shudra का भी था. Women was also not allowed to recite the Vedas or listen to the Vedas. They were not allowed to have any god until the Gupta period. अब Gupta period में हम एक चीज देखते हैं, that the Shudras along with the women, what they were allowed to listen to the Vedas, and they were given one particular god, that is God. कौन सा गॉड दिया गया था शूद्रास और गॉड कृष्ण गॉड कृष्ण गुप्ता पीरियड के। अब आप कर सकते हो, क्यों? बिकॉज प्रेशर था, हिंदुइज्म रिफॉर्म हो रहा था, बुद्धिज्म से लोग भाग रहे थे, हिंदुइज्म में आ रहे थे, बुद्धिज्म अब और रिजिड होता जा रहा था, ठीक है। बुद्धा को वर्शिप किया जा रहा था, जो उसका ओरिजिनल पार्ट नहीं था, उसकी जो रिलीजियस टीचिंग्स थी संस्कृत में लिखी जा रही थी, ठीक है। ये सब चीजें जो हो रही थी, तो इन चीजों की वजह से हिंदुइज्म रिफॉर्म हो रहा था, तो ये ब्राह्मण्स इन शूद्रास के लिए रिलैक्सेशन दी गई थी। सो कमिंग टू द मिडिवल टाइम्स, दिस कास्ट सिस्टम, हाँ जाति सिस्टम की बात अगर हम करें, तब अगर आप देखेंगे विद इन द ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और वैश्य और शूद्र वर्ण, these were hierarchical in nature. Brahmins were at the top, Shudras were at the bottom. But again, you will see that within each varna, there was hierarchy of each and every varna. In each and every varna, they maintain a hierarchy of the status. Suppose कुछ ब्राह्मण जो है, वो खुद को superior समझेंगे दूसरे ब्राह्मण्स. Even during the 6th century BC, there were 2 categories of Brahman that is accepted by the reference for which is present in these Buddhist texts. One was Brahman, who was expert in these Vedas and all that, who were respected by the society. Even the Buddhists respected them. But there was another category of the Brahmins who were the village Brahmins.
those Brahmins who would earn their livelihood by indulging in this magic जादू सिस्टम वगैरह जो है उसमें वो इन्वॉल्व होते थे। तो ब्राह्मण्स की भी कैटेगरी दो की, पुअर ब्राह्मण्स भी थे, जो रिच ब्राह्मण्स भी थे। आप एक गुप्ता टाइम का एक ड्रामा है, उसका नाम है मिरीचा कटिकम, विशाखा दत्ता ने लिखा है, लिटिल क्ले कार्ट। तो उसमें जो पुअर ब्राह्मण है उसकी जो सर इंडियन क्लासिक लिटरेचर में पढ़ाया जाता है सर। हाँ सर इंडियन क्लासिक लिटरेचर में पढ़ाया जाता है मिर्च कटिकम। हाँ, मिर्च कटिका विशाखा दत्ता ने लिखी है ना। तो उसमें पुअर ब्राह्मण का जो लव अफेयर है एक कोर्ट की एक लड़की के साथ, फिर उसको फाइनली पनिश किया जाता है। जैसे आप देखेंगे ओरिजिनल लिटरेचर में ब्राह्मण्स वर प्रिविलेज। क्षत्रिय को कोई मारे तो कितनी गायें देनी होती थी? आप वर्णा सिस्टम को देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि ब्राह्मण जो है 5 गाय देनी होती थी। क्षत्रिय अगर क्षत्रिय को कोई मारे, जो वर्जल्ड सिस्टम था 1000 हाँ 1000। आपने पढ़ा ना क्राइम, इसमें लॉ एंड जस्टिस में पढ़ा है ना, ये मैंने पढ़ाया था ना लॉ एंड जस्टिस। तो क्षत्रिय को कितनी, अगर क्षत्रिय को कोई मारता कितनी गाय देनी पड़ती थी? 1000। अगर वैश्य को 100, अगर शूद्र को 100। सर शूद्र वाज कंसीडर्ड एज एनिमल सर। नहीं, शूद्र अगर मारा जाता तो 10 गाय देनी पड़ती। ठीक है, अगर ब्राह्मण के लिए कोई पश्चाताप, क्या बोलते हैं हिंदी में, एक्सपिएट करना, पश्चाताप, द मर्डर ऑफ अ ब्राह्मण कैन नॉट बी एक्सपिएटेड, द सिन ऑफ अ मर्डर ऑफ अ ब्राह्मण कैन नॉट बी एक्सपिएटेड। उस चीज को आप खत्म ही नहीं, इसलिए कोई गाय वाय नहीं देना। आप सोच भी नहीं सकते ब्राह्मण को मारना। इतनी प्रिविलेजेड पोजीशन अपनी मेंटेन कर रखी थी थ्रू रिलीजियस टीचिंग्स। आप देखेंगे जिसके पास भी कलम होता था ना, जिसके पास भी कलम है, कल उस जमाने में, आज आप किसी भी सोर्स से ये समझ सकते हैं, इंटरनेट हो आपके पास, टेलीविजन हो आपके पास, मीडिया हो आपके पास, आप अपनी बात रख सकते हैं और लोग उसी चीज को मानेंगे। मीडिया कंट्रोल सुना है कभी बुक, इसका नाम सुना है? सर। किसकी बुक है मीडिया कंट्रोल? नॉम चॉम्स्की की। तो किस तरह से बोलता है कि मीडिया कंट्रोल करके अपना प्रोपेगेंडा स्टेट कैसे रखता है। यहाँ आप कल्चरल हिजमनी कंसेप्ट है एक ऑथर का, आप देख लेना उसको, विकिपीडिया पे आप थोड़ा सा आइडिया मिलेगा उसका। एंटोनियो ग्राम्शी का क्या बता दे, एंटोनियो ग्राम्शी कि किस तरह से जो कैपिटलिस्ट क्लास है इन्होंने किस तरह से अपनी डोमिनेंस मेंटेन कर रखी है, किस तरह से कार्ल मार्क्स की प्रिडिक्शन जो थी दैट ए स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी वुड बी एस्टैब्लिश्ड, वो क्यों नहीं हुआ। जो कार्ल मार्क्स की प्रिडिक्शन थी दैट कैपिटलिज्म इज सोइंग द सीड्स ऑफ इट्स, capitalism is sowing seeds of its own destruction, that thing never happened. And the explanation for that was provided by Antonio Gramsci, that how this capitalist class, they have hijacked all the means of, all the media, all the means of this, you can say, percolating the information to the society, जैसे religion के through, media के through, cinema के through, radio के through, books के through, वो establish करेंगे that capitalism is something normal. And कैपिटलिज्म, जब मैं पैसे खर्च कर रहा हूं, मैं बड़ी सी फैक्ट्री बना रहा हूं आप वर्कर हो वहां पे, आपके बच्चे खाना खा रहे हैं, आप कपड़े पहन रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज आई हैव गिवन यू द जॉब। इट इज, as per Antonio Gramsci, it has been established by the capitalist class, this kind of you can say this kind of understanding in the society। ठीक है, आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, उनका जो एज पर कार्ल मार्क्स उनकी जो वेल्थ है वो सब कम्युनलाइज हो गई। ये क्या कहते हैं उसे, सोशलिज्म का कंसेप्ट या कम्युनिज्म का कंसेप्ट उनका है। तो बात यहाँ हम ब्राह्मण्स की कर रहे हैं, दैट दे केप्ट ऑल द प्रिविलेज फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, इवन क्षत्रिय को सेकंड स्टेटस दे दिया, पहला स्टेटस खुद ले लिया। ठीक है, बट इन बुद्धिज्म में आप देखेंगे दे वर नॉट कंप्लीटली believing in the caste system, but still they placed the Kshatriyas over the Brahmins। ठीक है, उन्होंने कहा क्षत्रिय जो हैं वो ब्राह्मण्स के ऊपर हैं। अब देख बुद्धा जब भी जटा का स्टोरीज में बुद्धा जब भी पैदा होते हैं वो या तो ब्राह्मण कास्ट में पैदा होते हैं या तो क्षत्रिय कास्ट में पैदा होते हैं। जब क्षत्रिय कास्ट हाई होता है तब क्षत्रिय कास्ट में पैदा होते हैं, जब ब्राह्मण कास्ट सोसाइटी में हाई रैंक पे होता है तब ब्राह्मण कास्ट में पैदा होते हैं। जटा का स्टोरीज वो होती है कि बुद्धा की प्रीवियस 500 बर्थ्स
जो हुई है फाइनली उस अवतार में उस समय पे वो इमर्ज हुए जब बुद्धिज्म का वो फाउंडेशन हुआ। तो बात फिर से अपने टॉपिक की करते हैं कि ब्राह्मण ने जो है अपने लिए हर एक प्रिविलेज रखा और दूसरे क्लासेस को बहुत ही कम प्रिविलेज रखा। जैसे मैंने कहा शूद्रास के लिए ज्यादा ही कुछ था। तो मिडिवल टाइम्स की बात करें, जब मुस्लिम्स यहाँ आए, when Muslims came here, the Turks came here, they established their rule in India. सर हाँ, सर जो ये सतपथा ब्राह्मण्स और तैत्तिरीय ब्राह्मण्स होते थे वो भी इस ब्राह्मण क्लास के अंडर में आते थे ना? हाँ, तो सर ये कौन होते थे? कौन? सतपथा ब्राह्मण्स और तैत्तिरीय ब्राह्मण्स। I don't know exactly, but when you say that they are the Brahmins, they belong to the Brahman Varna, but there might be that they might be superior to some other Brahmins, or they might be inferior to other Brahmins. As I told you, the concept of jati there, within the Brahmanism, there were आप चतुर्वेदी हैं, त्रिवेदी हैं, ऐसे ब्राह्मण भी होते हैं ना? यस सर। तो ये एक मतलब वो सीक्वेंस बनी कि गोत्रा सिस्टम फिर आया ब्राह्मणिज्म में, कुछ ब्राह्मण खुद को सुपीरियर समझते हैं दूसरे ब्राह्मण से। या आप शूद्राज में भी अगर आप देखेंगे, शूद्राज में भी एक हायरार्की मेंटेन हुई। कुछ शूद्रा जैसे आप देखेंगे फिशरमैन जो है, ये इवन चंडालाज में, आई थिंक फिशरमैन जो आते हैं वो किस में आते हैं? चंडा उसमें अनटचेबल्स में आते हैं क्या? यस सर। फिशरमैन, सपोज आप फिशरमैन को ले लेंगे ना, फिशरमैन जो है माली कास्ट जो है, माली कास्ट खुद को सुपीरियर समझेगा फिशरमैन से, और फिशरमैन खुद को सुपीरियर समझेगा कॉबलर से, ठीक है? और कॉबलर भी किसी को, जैसे वो पोर्टर कास्ट कुमार है, कुमार भी खुद को सुपीरियर समझेगा किसी और से, आयरन स्मिथ से। आयरन स्मिथ जो है, गोल्ड स्मिथ जो है, वो सुपीरियर समझेगा आयरन स्मिथ से खुद को। तो वो जो है उनमें भी कास्ट हायरार्की एस्टेब्लिश होती है। अब जो फिशरमैन है, आयरन स्मिथ के लोग फिशरमैन में शादी नहीं करेंगे, ठीक है? फिशरमैन ही शादी, फिशरमैन की कम्युनिटी में ही शादी करेंगे। इवन आज भी आप इंडिया में देखेंगे, कास्ट सिस्टम इज still intact in a very good form, not only in Hindu society but also in Muslim society. आप medieval times में देखेंगे Muslim religion में जैसे Hinduism में caste system जो है, it is backed by the religion, ठीक है? Varna system जो है, it is backed by the religion, but in Islam there is no caste system. Everybody is equal in the religion of Islam, but in the practical Muslim society, you will see that there is caste system in India. In every state of India, this Muslim society also follows the caste system. Be it Kashmir, be it Bengal, be it UP region, be it Bihar region, caste system is still there. There is divisions of Pathans, Mughals. There is broadly in Bengal there is two categories. One is Ashraf and another is Ajlaf. Ashraf means noble; they are the upper caste, and Ajlaf means mean. That is the lower caste people. ठीक है? That happens when majority of people from Hinduism they converted to Islam. They were generally the people from the lower classes because they think that Islam is providing some egalitarian or equality to the people. So with that they decided to shift. They decided to convert to Islam. लेकिन जब इस्लाम में आए, उनको स्टेटस जो था लोग सोसाइटी में वही मिला। अगर कोई माइग्रेट करके मुस्लिम आया था सेंट्रल एशिया से, वो सैयद है, पठान है, मुगल है, यहाँ का जो था, यहाँ के कुमार कास्ट का कोई मुस्लिम बना तो उसके साथ कुमार ही रह गया, जाति उसकी, वो उम्र भर कुमार ही रह गया। इवन जैसे कश्मीर में हमारे यहाँ है, कोई कुमार है तो वो कुमार ही रहा हिंदुइज्म से, ठीक है? जैसे मुस्लिम सोसाइटी कश्मीर में जो थी इन 14th century देयर वाज मास कन्वर्जन। सिर्फ बंगाल और कश्मीर में आप देखेंगे मास कन्वर्जन हुए, पर्टिकुलरली इन कश्मीर 14th century में। और गांव के गांव, शहर के शहर मुस्लिम बनते गए बिकॉज ऑफ this many Sufis went there and they spread the Islam there. So caste system जो Hinduism का था that remained intact even in present day Muslim society of Kashmir. You will see that जो Sayyids हैं, those who believe that they came to Kashmir from Central Asia, they would not marry into the castes of those castes which are the converts from Hinduism. जो local castes हैं, कुमार हो, मीर हो,
ऐसे ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो लोकल कास्ट हैं, जो सैयद है वो खुद को सुपीरियर समझते हैं, उसमें इंदिरा भी आते हैं, बहुत सारे कास्ट आते हैं। तो कहने की बात ये है कि दैट कास्ट सिस्टम अगर मुस्लिम सोसाइटी ने इन्फ्लुएंस किया हिंदू सोसाइटी को, जैसे पर्दा सिस्टम आप देखते हैं, पर्दा सिस्टम नहीं था ना हिंदुइज्म में, इट इज द यस सर, इट इज इन इस्लाम, बट आप फिर भी देखते हैं दैट इन इंडिया इवन आज भी आप देखेंगे देहात गांव देहात में जो औरतें हैं वो घूंघट नीचे करती है, हाँ ठीक है, वो एंशिएंट इंडिया में था ही नहीं कंसेप्ट। दिस इज इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन हिंदुइज्म और दिस इज इन्फ्लुएंस ऑफ मुस्लिम सोसाइटी ऑन हिंदू सोसाइटी। In the same way you see that the caste system of Hinduism influenced the Muslim society, ठीक है, बट कुछ ऐसी चीजें हुई मिडिवल टाइम्स में, कहते हैं कि उसको कहते हैं एक हिस्टोरियन अर्बन रेवोल्यूशन, ठीक है, वो किस वजह से पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी which was provided by Islam to its followers, ठीक है। अर्बनाइजेशन मिडिवल टाइम्स में कैसे हुआ? जब कास्ट्स पहले होते थे, एक शहर में जो है शूद्र वैश्य अनटचेबल एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है, वो दूर दूर क्वार्टर्स बनाने पड़ते थे, वैश्य अलग रहते थे, ब्राह्मण अलग रहते थे। जब इस्लाम यहाँ आया, मुस्लिम किंग्स यहाँ आए, उन्होंने ये सब कंसिडर नहीं किया, तो जो मार्केट्स ये सब थे उनके कंट्रोल में थे, तो वहां से पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट्स, जो स्किल किसी के पास भी होता था, चाहे वो शूद्र होता, अनटचेबल होता, वो मार्केट में आता, उस स्किल को बेचता था, चाहे आयरन समेत होता, गोल्ड समेत होता, हर एक अपना मार्केट स्टैब्लिश करने लगे। तो उससे कहते हैं कि उससे अर्बन रेवोल्यूशन आइडिया ये क्या हैव यू लॉक्ड द मीटिंग? कुछ हुआ है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है Yes, sir. एकदम मस्त। People who have got disconnected are not able to join. नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं है इसके साथ। क्या हो रहा है फिर इनका? You cannot minimize Zoom when you are recording this meeting. So what we see about the caste system now? First, that caste system emerged from this later Vedic period, and slowly and gradually it got roots in the society. And with this Varna system, there were other concepts that were associated with the caste system, that is Jati system. And we have also seen the development of the untouchables. ठीक है, untouchables क्या था? वो जिनको Brahmin population हो, जो Varna population, जो those people who were considered a part of Aryan society, these untouchables were not allowed to even live in the in the village of these Aryans, ठीक है, तो अलग सेपरेट रहते थे। कुछ और मैं इसके बारे में बता दूं आपको। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। Yes, so सर आपने अपार धर्म के बारे में बताया था। हाँ, यस सर उसमें ब्राह्मण्स जो है अपार धर्म एक तरीके से फॉलो, वो किंग्स बन जाते थे बिकॉज वो अपने खुद की नीड्स को पूरा नहीं कर पाते थे अपने वर्क से। तो सर क्षत्रियास कैसे फॉलो करते थे अपार धर्म को, मतलब वो क्या क्या करते थे? देखो, मैंने आपको कहा ना कि क्षत्रिय के लोग वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर सकते थे, क्योंकि आप देखेंगे जब 6th सेंचुरी में ट्रेड वगैरह डेवलप हुआ, मार्केट्स, उसको हम सेकंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। किसको? 6th सेंचुरी बीसी को इंडिया में सेकंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। फर्स्ट अर्बनाइजेशन किसको कहते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन को। आर्यन जब यहाँ आए तो वो अर्बन सिटीज में नहीं रह रहे थे, वो नोमैड्स थे, पेस्टोरल कम्युनिटी थी। जब आप अर्बनाइजेशन कहते हैं, वहां पे इमर्जेंस ऑफ सिटीज हो रहा है, एक लग्जरियस लाइफ का वो देख रहे हैं आप, क्योंकि उसका सारा बेनिफिट कौन रीप आउट कर रहे थे? अभी जो वैश्य क्लास है, या ये जो क्षत्रिय क्लास है, वैश्य और क्षत्रिय क्लास रीप आउट कर रहे थे सारे, जो भी इसके इस अर्बनिज्म के, यहाँ सेकंड अर्बनिज्म की बात कर रहे हैं, मार्केट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत खूब पैसा आने लगा, नई नई चीजें डिस्कवरी, नई नई चीजें इन्वेंट हो रही थी, ठीक है, लग्जरी के नई नई चीजें इन्वेंट हो रही थी। तो ब्राह्मण्स को लगा कि हम अपनी ही इस जॉब को अगर फॉलो करेंगे तो हम ये सारी चीजें एंजॉय नहीं कर सकते। देन दे केम अप विद दिस थ्योरी
अब जब आपको लग रहा है कि पावर जो क्षत्रिय के पास है, अब आप भी इसको एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन आपको रिलीजियस एक वो चाहिए ना। अब आप देखेंगे एंशिएंट पीरियड से लेकर महाराज जो छत्रपति महाराज जो है शिवाजी के टाइम तक भी दीज थिंग्स वर टेकन सो मच सीरियसली दैट यू नीड लेजिटिमेसी, यू नीड जस्टिफिकेशन। अब ब्राह्मण्स तैयार ही नहीं हो रहे, इतने बड़े वरियर, इतने बड़े किंग, तो ब्राह्मण्स वहां के तैयार ही नहीं हो रहे हैं कि उसको क्या है कि उसके लिए जो कोरोनेशन सेरेमनी होती है, राजा सूया उसको कहते हैं, कि हम उसके लिए कर लें, कि वो बोलते हैं ये क्षत्रिय कास्ट से है ही नहीं। ठीक है, तो आपको एक जस्टिफिकेशन चाहिए ना, तो वो जो है वो जस्टिफिकेशन जो है वो हमेशा से आपको चाहिए। तो वो अपार धर्म जो था वो वही जस्टिफिकेशन थी। ब्राह्मण साहब किंग बने तो कोई आवाज नहीं उठाएगा, लेकिन क्षत्रिय उसमें ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं। ठीक है, क्षत्रिय जो है वो क्या कहते हैं उसमें, ये वेश्यास जो है, वेश्या का जो एग्रीकल्चर है, लैंड के रिलेटेड है, मर्चेंट्स जो है उसमें जा सकते हैं, क्योंकि सारे क्षत्रिय किंग तो नहीं बन सकते, उनकी भी बड़ी पॉपुलेशन है। सारे क्षत्रिय अगर किंग बनेंगे तो हाँ पुलक मोहंती, यू हैव रेज्ड योर हैंड। हाँ Sir, so you explained about caste being the birth and jati being the profession differentiation. Sir, तो उसमें caste क्या आता है? Caste और वर्ना सेम है? By birth the differentiation that's placed. देखो, जब इंडियन कास्ट के बारे में बात करें, मैंने कहा ना कास्ट इंक्लूड टू थिंग्स, वन इज वर्ण सिस्टम एंड अदर इज जाति। जाति को आप कास्ट नहीं कह सकते हैं, जो स्कॉलरली राइटिंग है उसमें आप इफ यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक देन यू कैन नॉट कॉल ए जाति ए कास्ट। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट कास्ट इंक्लूड्स टू थिंग्स, वन इज ब्राह्मण, वन इज वर्ण सिस्टम एंड अदर इज जाति सिस्टम। वर्ण तो 4 है, ये तो सबको पता है, 4 है, 4 से ज्यादा है नहीं, लेकिन जाति कितने हैं? जाति कितने हैं? मैंने कहा था ना मॉडर्न पीरियड में जब सर्वे हो तो 3000 ये जातिज थी, उनको भी कास्ट कहा जाता, नो डाउट उनको भी कास्ट कहा जाता है। लेकिन जो जाति सिस्टम है वो सिर्फ ना ही ऑक्यूपेशन बेस्ड है, ऐसा भी कहा जाता है देयर आर मेनी रीजंस फॉर द इमर्जेंस ऑफ जातिज इन इंडिया, नॉट ओनली दिस ऑक्यूपेशन। यू आर आयरन स्मिथ, आपको लोहार कहा जाएगा, यू आर मेकिंग दिस यूटेंसिल्स ऑफ दिस, जो पोटर होता है आपको कुमार कहा जाएगा, आप फिशरमैन है तो आपको क्या कहा जाएगा? मछुआर कहा जाएगा। ये ऑक्यूपेशन बेस्ड था, बल्कि ऐसे भी कास्ट इमर्ज हुए इंडिया में जिनके रीजंस डिफरेंट थे, जैसे ऐसा भी कहा जाता है सर। हाँ, सो कास्ट और वर्ना में सिर्फ नंबर का डिफरेंस है, वर्ण 4 है और कास्ट आर मेनी। हाँ, कास्ट का जाति मेनी है। हाँ, तो नहीं, देखो वर्ण सिस्टम जो है ना, वर्ण सिस्टम ब्रॉडली 4 है, और जो जाति है वो ऑक्यूपेशन बेस्ड है ना। ऑक्यूपेशन बेस्ड है कि आप जो उसमें जा रहे हैं वो ऑक्यूपेशन आपका डिसाइड हो रहा है जाति में। जाति में क्या है आपका ऑक्यूपेशन? अगर आपका ऑक्यूपेशन फिशिंग है तो फिशरमैन कहलाए जाएंगे, मछुआर। आपका ऑक्यूपेशन मींस जितने ऑक्यूपेशन है उतनी जातिज हैं। हाँ, जैसे नेहरू अब मैंने बताया कि नॉट ओनली दिस जाति सिस्टम इज नॉट ओनली ऑक्यूपेशन बेस्ड बट देयर आर अदर रीजंस। अगर सपोज शूद्रा की शादी चंडाल से हुई, उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स होंगी तो उनका कुछ ऐसा लोकेशन के बेसिस पे कुछ ऐसा नाम आ जाएगा, वो भी जाति बन जाए। जैसे नेहरू है हमारे, नेहरू की फैमिली कैसे नाम पड़ा? अब नेहरू भी एक कास्ट हुआ ना, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, कैसे नाम पड़ा? उनके जो फादर थे मोतीलाल नेहरू के, जो जवाहरलाल नेहरू के वो थे दादा, वो कश्मीर के थे। उनके सर एंसेस्टर्स और नहर के किनारे रहते थे सर, कश्मीर में। एग्जैक्टली, नहीं कश्मीर से कहीं यहाँ आए थे इंडिया में, तो नहर के किनारे रहने लगे, तो वो नेहरू हो गए। नहीं सर, हाँ सर वहां पे रहते थे सर, नहर किनारे, तो नेहरू इसलिए बड़ी बाद में आए थे सर दिल्ली, तो वो लोग सर दिल्ली नहीं आए थे, वो इंडिया में ऑलरेडी रह रहे थे, तो नेहरू यहाँ के नाम से पड़ा था, कश्मीर के नाम से नेहरू नहीं पड़ा था, तो यहाँ से पड़ा, क्योंकि कश्मीरी में नहर का कोई नाम ही नहीं है। ठीक है, मतलब हम नहर नहीं बोलते हैं कश्मीर में, कुछ और बोलते हैं उसका नाम। सर तो जाति और कास्ट सेम चीज है देखा जाए तो? हाँ, अभी भी बोलते हैं हम कास्ट क्या है आपका, जाति क्या है, लेकिन मैंने कहा ना स्कॉलरली राइटिंग में कास्ट जो है 2 चीजें हैं, एक तो वर्ण है, दूसरा जाति है। वर्ण एक अलग कंसेप्ट है, वो रिचुअल बेस्ड है, वो क्या कहते हैं उसको रिलीजियस बैकिंग है, आपके पर्टिकुलर
कुछ ड्यूटीज हैं उसको लेके, ठीक है। जो कास्ट शूद्र है, शूद्र में आपने जो है आपको सर्विस करना है, लेकिन आप शूद्र में अब आप बन गए हैं, लोहार भी बन गए हैं, वो भी बन गए, फिशरमैन भी बन गए। ये आपके रिलीजन में नहीं लिखा है कि आपको शूद्रा को है जो उसको बनना है, लोहार बनना है, फिशरमैन बनना है, माली बनना है। नए नए ट्रेड्स आए। पहले सपोज कोई ऐसी ऑक्यूपेशन थी, आयरन स्मिथ नहीं होता था पहले, ठीक है, ऋग्वेदिक पीरियड में तो आयरन स्मिथ नहीं होता उस समय पे, उसका कोई कास्ट ही नहीं होता। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी कोई रिलीजियस बैकिंग, कोई रिलीजियस टीचिंग, कोई रिलीजियस रूल ही नहीं होता। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आयरन मोर एंड मोर यूज होने लगा तो एक आयरन स्मिथ का एक पर्टिकुलर ग्रुप बन गया और आयरन स्मिथ के विलेजेस वजूद में आए। अगर आप देखेंगे ना जब शूद्रास कहीं पे रह रहे थे और अब्राह्मण्स रह रहे थे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉपुलेशन बढ़ती गई। एक ने विद इन द सेम फैमिली किसी ने क्या किया, एक बन गया शूद्र कैटेगरी में, एक बन गया लोहार, उसका भाई बन गया वो लोहार बन गया, उसका भाई जो है वो फिशरमैन बन गया, या कोई और कैटेगरी का गोल्ड स्मिथ बन गया। एक ही फैमिली के एक भाई फिशरमैन गोल्ड स्मिथ, एक भाई आयरन स्मिथ। विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी जो पॉपुलेशन है 100 साल बाद एक पूरा गांव बन गया होगा, ठीक है। अब ये छोटा सा गांव जो आयरन स्मिथ की फैमिली से निकला तो आयरन स्मिथ की फैमिली से निकला तो लोहार वाला गांव कहलाया जाएगा, जो फिशरमैन या गोल्ड स्मिथ की वो सुनार वाला गांव कहलाया जाएगा। तो आप अब तक कितने साल गुजरे हैं, तो धीरे धीरे करके वो इसी तरह से ये चीजें इमर्ज हुई। ये बहुत ही कम्प्लेक्स है समझना इस तरह से कि आप ये नहीं कि ओवरनाइट कोई सडन डेवलपमेंट नहीं है कास्ट, ये जो जाति सिस्टम। अब अगर आप देखेंगे मनु चुके कहता है देयर वर ओनली 61 castes that time, बट आप गुप्ता पीरियड पे देखेंगे ना, another work counts around 100 castes there, and again in modern period you will see that there are 3000 castes। अब आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से धीरे धीरे कास्ट ये जाति आ रहे हैं, जाति कास्ट जिसको हम कहते हैं लेमैन लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन आप जो वर्ण है, वर्ण चाह रहे हैं, उसमें कोई दूसरा तो चौथा पांचवा कोई जुड़ेगा नहीं। हालांकि कभी कभार जो ये था, क्या नाम है इसका, चंडालास या अनटचेबल्स, that was considered as a fifth varna, but some authorities they completely rejected this idea. They just consider them outcasts, that they are not the part of the